Greetings everyone. How are you all? I guess everybody is fantastic and enjoy studying at home. This is your Flamingo book, first chapter, the last lesson. Somewhere this is very interesting because the chapter number is first and the name is the last lesson, which is written by Alphonse Daudet. As according to the board classes, you know, vocabulary plays a vital role. Okay, so the very first I will tell you some keywords of the chapter. First is blushed, became red or felt shame. Second is solemn, means very serious, and slave means made slave. हॉपवेन मीन्स विन ऑफ हॉप प्लांट मीन्स हॉप प्लांट होता है जिसकी एक बेल होती है जिसको बोलते हैं हॉपवेन. ट्रम्पेट्स यू नो विंड इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आता है. ट्रम्पेट मीन्स शोक और ट्रबल्ड with fear means डर के मारे कांपना. Wretches means unfortunate or unhappy person, and wheel of friends means long live friends. Means this wording was written by M. Hamel teacher on the board at the end of the chapter. इसका मीनिंग होता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो लंबे समय तक जो वो रही. Now you know, now we are going to start our character chart of the chapter. So the first character is their French. French जो है एक school going boy है. Okay, and he is a student of French language also. Secondly, M. Hamel. M. Hamel is a teacher who is a teacher of French language. Means M. Hamel is the teacher of French. Okay, they are the teacher and student. Next, I'm going to tell you former mayor. Former means retired mayor. नेक्स्ट इज देयर फॉर्मर पोस्टमास्टर मीन्स एक रिटायर्ड पोस्टमास्टर है यहाँ पे विलेज से ही है ये. नेक्स्ट इज क्राउड मीन्स गैदरिंग ऑफ द पीपल. The next one is villagers. Villagers were sitting on the back benches of the classes. Next is their students. You know, if the teacher and student is there, then other student will also be there, so other students also there. Next is blacksmith. Blacksmith is the watcher. Watcher is his name. Watcher name का जो blacksmith है वो यहाँ पर है जो कि bulletin board को पढ़ रहा होता है. Old horser. Old horser is also a famous personality of the village. Okay, all these are the characters of this chapter which I have shown you, and you should also draw this character chart on the register. Okay, the next is there, as you will see, key points. Okay, as I always give you the key points to make the short notes on the register, so that at the time of examination it will be very easy to you everybody to go through the chapter. Okay, as you have seen one photo on the screen, this is the photo of, you can say, French student. The next photo will appear before you, that is M. Hamel, the teacher. Okay, as you have seen in this picture, एक टीचर है जो कि शाउटिंग कर रहा है स्टूडेंट के ऊपर. मीन्स टू से कि जो टीचर है वो रूड है और जो स्टूडेंट है वो काफी टेरिफाइड है. ओके, फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट फ्रेंच. ओके, जो फ्रेंच स्टूडेंट है हम पहले उसी से स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको अल्फोंस डाउडे के बारे में कुछ बताना चाहूंगी. अल्फोंस डाउडे वाज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, and this lesson is set in the days of the Franco-Prussian War in 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia. और प्रूशिया में उस टाइम पे 3 कंट्रीज को इन्वॉल्व करते थे. फर्स्ट कंट्री इज फ्रांस, सेकंड इज पोलैंड एंड थर्ड इज देयर ऑस्ट्रेलिया. इन 3 कंट्रीज को इसके अंदर क्या करते थे, इन्वॉल्व करते थे उस टाइम पे. इस स्टोरी में हम जो है बर्लिन से ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर की वजह से जो फ्रांस है उसके 2 डिस्ट्रिक्ट में, एल्सेस एंड लॉरेंस में, उसके स्कूल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. जो चैप्टर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रेंच से स्टार्ट होता है, बिकॉज फ्रेंच इज अ फ्रेंच बॉय हु नरेटेड दिस स्टोरी. जो फ्रेंच बॉय है फ्रेंच, वो इस स्टोरी को आपको नरेट कर रहा है. मीन्स इसमें जो नरेट कर रहा है स्टोरी वो कौन कर रहा है, फ्रेंच कर रहा है. बट जो राइटर ऑफ द चैप्टर है वो कौन है, अल्फोंस डाउडे. डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड ऑफ द पार्टिसिपल. यहाँ पर पार्टिसिपल का एक टॉपिक जो है वो टीचर उसको देता है करने के लिए घर पे, बट वो उस टॉपिक को प्रिपेयर नहीं कर पाता. ही डिडंट नो इवन द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ पार्टिसिपल. यू नो पार्टिसिपल इज द टॉपिक ऑफ ग्रामर. ग्रामर का टॉपिक होता है तो वो उसको नहीं आता है, इवन उसको उसका पे भी नहीं आता है. तो स्टार्टिंग में जो वो घर से निकल रहा होता है, घर से जैसे वो निकलता है
निकलने के बाद वो घर से लेट हो जाता है, पहले वो घर से लेट चलता है और मतलब वो रास्ते में भी लेट हो जाता है। ही वांटेड टू बंक द स्कूल और बंक द क्लास, वो क्लास को बंक करना चाहता है, यहाँ पे वो जाना ही नहीं चाहते। जब हम सोचते हैं कि हमारा होमवर्क नहीं हुआ है तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं क्यों ना यार स्कूल को बंक करे, क्लास बंक करे, जिसका हमने होमवर्क नहीं किया है आज हम क्लास को बंक कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेम यहाँ पर फ्रेंच भी सोचता है कि मेरे को पार्टिसिपल नहीं आते, मैं जाऊंगा स्कूल में तो क्या करेंगे, टीचर मेरे से पूछेंगे, और पूछेंगे तो मुझे नहीं आएगा तो टीचर मुझे बहुत ज्यादा डांटेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो फ्रेंच है वो भी क्या करता है, अपने स्कूल को या क्लास को बंक करने की सोचता है, ठीक है। और जैसे वो यहाँ पर चल रहा होता है रास्ते में, ऑन द वे वो क्या देखता है, सो द प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल। सॉमिल्स होता है आरा, आरे के बैक साइड में जो बैक फील्ड में, वहां पर क्या होता है, जो प्रूशियन सोल्जर्स थे, देखो कंट्री कौन सी थी, फ्रांस थी, ठीक है, लेकिन सोल्जर्स किसके थे वहां पर, प्रूशियन के। तो प्रूशियन के सोल्जर क्यों थे, क्योंकि प्रूशियंस ने क्या किया था, फ्रांस कंट्री को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। अब हराने के बाद क्या हुआ कि वहां पर किसके सोल्जर्स आएंगे, प्रूशियन सोल्जर्स आएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर किसका कब्जा चल रहा है, प्रूशियन का कब्जा होने वाला है। बट इसको भी जो है फ्रेंच वो नहीं समझ पाता कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नोटिस करता है, वो नोटिस करता है कि जो प्रूशियन सोल्जर्स हैं वो ड्रिलिंग मीन्स यहाँ पर परेड कर रही हैं ओपन फील्ड में, सॉ मिल मीन्स आरे के बैक साइड में। फिर वो और भी नोटिस करता है कि जो बाहर का जो वेदर है वो बड़ा वार्म था, बड़ा ब्राइट था, ओके, और जो बर्ड्स थे वो चिरपिंग कर रहे थे, ठीक है। इसका जो फ्रेंच का नेचर है वो एक तरह से क्या है कि लेजी भी है, लेकिन वो सेंसिटिव है, और लाइक टू प्ले, वो खेलना भी पसंद यहाँ पे करता है, ठीक है। अब वो जैसे ही चल रहा होता है रास्ते में, तो वो इन चीजों को देख के अट्रैक्टिव होता है, वो सोचता है कि क्यों ना मैं स्कूल को बंक कर लूं आज, और क्योंकि मुझे पार्टिसिपल का चैप्टर नहीं आता है, मुझे पी भी नहीं आता उसका, तो टीचर अगर पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, ठीक है। तो बंक करना चाहता है, बट फिर वो सोचता है कि नहीं, चलो मैं स्कूल में चल ही लेता हूँ। तो जैसे वो चलता है वहां से वो एक टाउन जो हॉल होता है उसको क्रॉस करता है, और जैसे ही वो टाउन हॉल को क्रॉस करता है वो क्या करता है, वहां पे जो टाउन हॉल के पास एक गैदरिंग होती है, जिस गैदरिंग कहाँ पे होती है, बुलेटिन बोर्ड के अराउंड में होती है, और मतलब बुलेटिन बोर्ड को लोगों ने घेर रखा होता है, और ये जो बुलेटिन बोर्ड है यहाँ से लास्ट 2 ईयर से जो है वो क्या आ रहा था, ओनली बैड न्यूज ही आ रही थी। क्यों बैड न्यूज आ रही थी, बिकॉज द वॉर वॉज गोइंग ऑन, क्योंकि वॉर चल रहा था, और वॉर में क्या था कि फ्रांस जो वो डिफीट होता जा रहा है, बार बार हारता जा रहा था, कभी जो है मतलब कुछ हार जाता था, कभी कुछ हार जाता था, ठीक है। इसके की पॉइंट्स भी मैंने आगे लिखे हैं जो आप इजीली लिख लोगे, ठीक है। तो मतलब बैड न्यूज ही यहाँ से आती थी बर्लिन से। तो उसके बाद क्या होता है कि उस दिन जो है ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल संडे हो, तो बिल्कुल शॉक्ड होता है वो देख के, क्योंकि कहीं पर भी उसको स्कूल के आसपास में कुछ भी शोर शराबा दिखाई नहीं देता, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है डिसलाइकिंग स्टडी फ्रेंच एंड हिज टीचर हैम हैमल। यहाँ पर देखो, अगर हमें किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दिस इज द फॉल्ट ऑफ द टीचर, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू टीच यू प्रॉपरली। तो अगर किसी का आपको चैप्टर या कुछ भी समझ नहीं आता तो पहले हम टीचर को ही हेट करते कि नहीं मुझे टीचर पसंद नहीं है, सेकंड क्या कहेंगे, मुझे सब्जेक्ट ही पसंद है। देखो अगर कुछ समझ आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। तो इसी तरह से वो फ्रेंच जो लैंग्वेज थी उसके टीचर जो थी एम हैमल, उनको वो डिसलाइक करता है, और स्टडी को भी डिसलाइक करता है, अपनी बुक्स को डिसलाइक करता है, ठीक है। और वो हमेशा बाहर की चीजों को एंजॉय करना चाहता है। फिर आता है कि शॉक टू नो अबाउट द लास्ट लेसन। जब वो क्लास में जाता है और एम हैमल उसको बोलते हैं कि आज मेरा लास्ट लेसन है, किस वजह से है, क्यों है, क्योंकि बर्लिन से एक नोटिस आया था जिसमें क्या था कि लॉरेंस और जो एल्सेस के 2 डिस्ट्रिक्ट थे, ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे दोनों फ्रांस के, इन पर किसका कब्जा हो चुका था, प्रूशियंस का कब्जा हो चुका था। और वो क्या थे, उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि उनको बोला कि आगे से यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रांस लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बड़ा शौक था। सडनली गोट इंटरेस्ट इन लर्निंग, और सडनली उसको लर्निंग में जो है वो क्या होता है, इंटरेस्ट आने लगता है। कैसे इंटरेस्ट आने लगता है ये बाद में जब चैप्टर की एंडिंग होगी तब बताते हैं। और लाइक्ड रिस्पेक्टेड एम हैमल, फिर वो क्या करता है, एम हैमल को बाद में वो लाइक करने लग जाते हैं। अब चलते हैं, ये जो पॉइंट्स आप इसको एज अ करेक्टर जो स्केच होता है वैसे भी ले सकते हैं,
ठीक है। और जो करेक्टर स्केच आप लोगे तो इसमें क्या होता है 6 मार्क्स में आपसे करेक्टर स्केच वो पूछ सकता है। नेक्स्ट, वन पिक्चर इज अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन दैट इज लाइक अ टीचर, एक टीचर है बोर्ड पे समझा रहा है पढ़ा रहा है, ठीक है। दिस इज द पिक्चर सीम्स टू बी एम हैमल की एम हैमल की पिक्चर की तरह मैंने ली है यहाँ पे। और नेक्स्ट जो है आपको मैं एम हैमल के बारे में बता रही हूँ। एम हैमल यहाँ पर क्या है, एक फ्रेंच लैंग्वेज टीचर है, यू नो इट वेरी वेल। सेकेंड इज एक्सटर्नली स्ट्रिक्ट बट इनिशियली सॉफ्ट हार्टेड, ये जो टीचर है एक्सटर्नली मीन्स बाहरी दिखावे से क्या करता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, बट इनिशियली क्या है वो बड़ा सॉफ्ट हार्टेड टीचर है। नेक्स्ट, गेव 40 ईयर सर्विसेज इन द स्कूल, उसी स्कूल में वो 40 ईयर से अपनी सर्विसेज दे रहा है, मीन्स टू से ही इज एज अ टीचर इन द सेम स्कूल सिंस लास्ट 40 ईयर्स। ओके, वॉज इन संडे ओकेजनल ड्रेस, मीन्स देखो संडे होता है स्पेशल और जो स्पेशल होता है ओकेजनल होता है, ओकेजनल ड्रेसअप में वो उस दिन था एम हैमल। और ये ड्रेसअप पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसकी ड्रेसअप क्या थी, ही वॉज हैविंग ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडरी, मीन्स कि पूरी तरह से उस पर कढ़ाई की हुई थी और ये ड्रेसअप उसने डाला हुआ था। और ये जो ड्रेसअप था वो ओकेजनली डालता था, या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे डालता था, या कोई ओकेजन होता था तब डालता था, वैसे ही इस तरह के ड्रेसेस कभी नहीं डालता था। तो जो फ्रेंच स्कूल में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर क्या होता है कि बिल्कुल शोरगुल नहीं होता, और टीचर के जो टीचर जो स्केल रैप कर रहे होते, मतलब स्केल को जैसे पटकना उसके ऊपर, उसकी भी साउंड नहीं आती वहां पे, बच्चों के लेसन रिपीटेशन की साउंड वहां पर नहीं आ रही होती है, ठीक है। तो और मतलब सब कुछ बड़ा स्ट्रेंज लगता है यहाँ पे उसको। फिर वो अंदर जब जाता है तो देखता है कि जो एम हैमल है वो इस तरह के ड्रेसअप में होता है जो कि यहाँ पर मेंशन है। डिलीवरिंग हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच लैंग्वेज, ये जो एम हैमल है अपनी लैंग्वेज जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसका लास्ट लेसन डिलीवर कर रहा था। क्यों? क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका था, और बर्लिन का ऑर्डर क्या था, दैट द जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट फ्रॉम द टुमारो, कि टुमारो से जो है वो क्या हो गया, आपकी जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बैन हो जाएगी और जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ठीक है। डिक्लेयर्स द हॉलीडे एंड गो फॉर फिशिंग वाटरिंग द प्लांट्स, मीन्स टू से कि एम हैमल यहाँ पर एक्सेप्ट करता है कि क्या कहता है कि देखो हमने जो ये फ्रेंच लैंग्वेज इस पे कभी ध्यान नहीं दिया। वो पेरेंट्स को भी ब्लेम करता है कि पेरेंट्स क्या थे कि अपनी हाउस होल्ड ड्यूटी के लिए क्या करते थे, बच्चों को कहीं पे भेज देते थे फॉर्म हाउस पे कि उनको अर्निंग हो जाए, वो भी फ्रेंच लैंग्वेज की तरफ कभी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या था कि जो एम हैमल है वो कहता है कि खुद वो भी क्या था, केयरलेस था। क्यों था केयरलेस? क्योंकि जब भी एम हैमल का मन करता था फिशिंग करने के लिए तो वो क्या करता था, हॉलीडे डिक्लेयर कर देता था कि आज आप घर जाओ, ठीक है, और आज आपकी छुट्टी है। और बच्चों को वो जैसे प्लांट्स में वाटर देने के लिए लगा देता था, फूलों में पानी देने के लिए उनको उनकी ड्यूटीज लगा दिया करता था, ठीक है। फुल ऑफ ग्रीफ, नॉस्टैल्जिया एंड पैट्रियोटिज्म, इसको समझना ध्यान से। फुल ऑफ ग्रीफ मीन्स अब जब लास्ट में उनको पता चलता है कि उनकी खुद की लैंग्वेज जो वो बैन हो गई है तो उसको बड़ा दुख होता है। नॉस्टैल्जिया मीन्स अब वो अपने जो लास्ट एक्सपीरियंस होता है, लास्ट फीलिंग, चाहे वो हैप्पीनेस की हो चाहे वो ग्रीफ की हो, वो उन सबको रिमेम्बर करता है। और पैट्रियोटिज्म मीन्स जो उसका देश प्रेम होता है वो उसके सामने आता है। फेल्ट हिज लैंग्वेज बेस्ट लैंग्वेज, और वो अपने लेक्चर डिलीवर करते करते क्या कहता है कि ये जो लैंग्वेज है वो दुनिया की बेस्ट लैंग्वेज है, इससे अच्छी लैंग्वेज कोई भी नहीं है, ठीक है। फिर वो कहता है लैंग्वेज इज द की टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, कि अगर हमारी कैचअप, हमारी पावर है, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो लैंग्वेज ही है, अगर हम इसके ऊपर अपनी पकड़ रखते हैं तो हम हमारे पास ही हमारी प्रिजन की है, हम उससे एस्केप हो सकते हैं, उससे बच सकते हैं। वो ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि देखो अगर कोई आपको कहे कि आपकी जो हिंदी लैंग्वेज है वो बैन होने जा रही है और आपको कल से मतलब इंग्लिश ही लैंग्वेज बोलनी है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी इंग्लिश लैंग्वेज की, कि इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसकी वजह से फिर आपको लगेगा कि नहीं, आपको हिंदी क्यों नहीं लिखनी आई, आपने हिंदी में क्यों इतनी मिस्टेक्स की हैं, ठीक है। तो आपको फिर लगेगा कि नहीं, मुझे हिंदी लैंग्वेज जो है वो अच्छे से पढ़नी चाहिए थी, और आप ट्राई करेंगे कि आप सारी हिंदी लैंग्वेज एक ही दिन में पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो इसकी वजह से यही सेम हैपन होता है, ये सब होता है वहां पर उन लोगों के साथ जो कि एल्सेस और लॉरेंस में रहते हैं। और क्योंकि उनके स्कूल में देखो उनकी अपनी ही लैंग्वेज बैन होने जा रही थी, और अगर कोई आके कहे कि आपकी लैंग्वेज बैन हो गई है, आपको दूसरी लैंग्वेज लर्न करनी है, तो देखो कैसा लगेगा सबको। बहुत ज्यादा ग्रीफ में थे, बहुत ज्यादा दुखी थे, ना केवल स्टूडेंट्स, इवन द विलेजर्स ऑल्सो एंड एम हैमल टू।
फेल्ट हिज लैंग्वेज बेस्ट लैंग्वेज, वो अपनी लैंग्वेज को बोलता है, विश्ड फॉर लॉन्ग लिव ऑफ अ फ्रेंच लैंग्वेज। लास्ट में जो उसकी लैंग्वेज होती है एम हैमल की, वो क्या लिखता है कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो क्या हो, लंबे टाइम तक रहे। ठीक है। अब जो है लास्ट में आपका जो है ये देखो स्टूडेंट्स, अब विलेजर्स का यहाँ पे कहाँ रोल आता है कि जो विलेजर्स होते हैं, जब फ्रेंच जो है वो स्कूल में पहुंचता है, उसको कोई भी शोर शराबा दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, और कुछ भी मतलब आवाज सुनाई नहीं देती, तो वो क्लासरूम के विंडो, जैसे आपको विंडो दिख रही है यहाँ पर, क्लासरूम की विंडो में से जो है वो झांकता है, तो देखता है कि बच्चे तो बैठे हुए हैं और बड़ी सीरियसली पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो क्लास के गेट पे मतलब सॉरी क्लास का जो डोर होता है उस पे वो एंटर करता है, तो एम हैमल उसको देख लेता है, नोटिस कर लेता है, और वो बोलता है कि लिटिल फ्रेंच वी वर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर विदाउट यू। उन्होंने कहा कि फ्रेंच, हम तो आपके बिना ही आज का चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे, अच्छा हुआ आप आ गए, लेकिन आप लेट हो। ठीक है। अब फ्रेंच जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है। नॉर्मली क्या होता था कि जैसे फ्रेंच लेट होता था तो एम हैमल उसको डांटता था, रूलर से पनिश करता था। ठीक है। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। दैट्स व्हाई फ्रेंच वाज लिटिल बिट शॉक्ड टू सी सच काइंड ऑफ चेंज इन एम हैमल। ओके। एम हैमल में इस तरह का चेंज देख के उसको बड़ा ही डिफरेंस सा फील होता है कि आज ऐसे चेंज कैसे आ गया उसके टीचर में। ठीक है। फिर सेकेंडली क्या होता है कि सेकेंड वो अपने बेंच पे जाके बैठता है। व्हेन ही सेट ऑन द बेंच देन ही सा दैट सम विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, को कि जो विलेजर्स थे ना वो बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे। अब विलेजर्स को देख के वो बड़ा शॉक्ड होता है कि स्टूडेंट्स तो चलो ठीक है क्लासरूम में बैठे हैं, बट अगर विलेजर्स क्लासरूम में बैठे हैं तो कैसा फील होता है, बड़ा स्ट्रेंज होता है। हम क्या सोचते हैं कि पता नहीं आज तो क्या होने वाला है, क्यों बैठे। देन सेम वाज गोइंग ऑन इन द ब्रेन ऑफ फ्रेंच ऑल्सो। फ्रेंच भी ये सारी चीजें सोच रहा था। अब वो फ्रेंच सोचता है चलो कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, बैठता हूँ। अब उसको डर था कि जो एम हैमल उससे क्वेश्चंस पूछेगा पार्टिसिपेट पर, उसको आंसर नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा, बिकॉज ही वाज नॉट रेडी विद द चैप्टर। ओके। और एंड द टॉपिक ऑल्सो। तो जब वो ये चीजें देखता है कि जो एम हैमल है वो उससे पूछने लगता है कि यस लिटिल फ्रेंच भी मुझे अपना चैप्टर का बताइए, इसमें से पार्टिसिपल किसको बोलते, तो फ्रेंच वाज स्पीचलेस। ओके। एंड फ्रेंच होप दैट नाउ एम हैमल विल पनिश हिम। अब उसने सोचा कि एम हैमल तो उसको पनिश करेगा। ठीक है। बट नथिंग हैपेंड लाइक दैट, इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ उसको। उसने कहा कि यही तो हमारी वीकनेस है कि हमने कभी भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ठीक है। अब इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तभी तो विलेजर्स भी जो थे वो प्राइमर अपने हाथ में, जो ओल्ड होसर था ना वो अपने हाथ में प्राइमर, प्राइमर मीन्स प्राइमरी क्लास की जो बुक होती है जहां से हमारी लैंग्वेज स्टार्ट होती है, उसको वो अपने हाथ में लेके बैठा था। एंड ही वाज ट्राइंग टू रीड द होल बुक दैट टाइम। वो ये सोच रहा था कि मैं आज इसी टाइम थोड़ी सी देर में मैं सारी लैंग्वेज को सीख जाऊं। और वही नहीं, जो विलेजर्स जो सारे बैठे थे, जो फॉर्मर मेयर बैठे थे, फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठे थे, और ओल्ड होस्टर बैठे थे, और रेस्ट ऑफ द विलेजर्स बैठे थे सारे, वो सब के सब ये सोचते हैं कि आज में हम सारी लैंग्वेज पढ़ ले, बिकॉज ऑल ऑफ दे वर फीलिंग शेम ऑन दैम। ब्लस्ड जो वर्ड हमने किया था वो यहाँ पर वो शेम महसूस करते हैं कि भाई हमने अपनी लैंग्वेज की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है। अब एम हैमल बोलना स्टार्ट करते हैं दैट दिस इज माई लास्ट लेसन। एम हैमल अब यहाँ पर बताता है कि जो ये है मेरा वो लास्ट लेसन है। क्यों है? क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि कल से आपको स्कूल्स में क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है। अब इसके बाद जैसे रास्ते में वो आ रहा होता है, जो ब्लैक स्मिथ उसको रोकता है। ठीक है। तो वो भी उसको कहता है कि लिटिल फ्रेंच यू आर नॉट गोइंग टू लेट, कि आप लेट नहीं हो रहे हो, आराम से जाओ। बट फ्रेंच तो सोचता है कि नहीं, जैसे डेली हम जाते थे तो वो क्या होगा, मैं डेली के अकॉर्डिंग तो मैं लेट ही हूँ आज। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ अदर की पॉइंट्स आते हैं कि पास द टाउन हॉल सा द क्राउड नियर द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है। तो वो जो पहले की पॉइंट्स थे वो फ्रेंच के करेक्टर स्केच और एम हैमर के करेक्टर स्केच से रिलेटेड थे। ये कुछ अदर पॉइंट्स है चैप्टर रिलेटेड की पास द टाउन हॉल, कि जैसे वो टाउन हॉल को पास करता है, रास्ते में चल रहा होता है फ्रेंच, सा द क्राउड, वो क्राउड देखता है बुलेटिन बोर्ड के अराउंड में, गेटिंग बैड न्यूज सिंस लास्ट 2 years। अब वो कैसी कैसी बैड न्यूज उनको बुलेटिन बोर्ड पे मिल रही थी। 2 marks में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। लोस्ट बैटल्स, बैटल्स के खोने का मीन्स उनके हारने का। ड्राफ्ट और ऑर्डर्स मीन्स कोई ना कोई न्यू ऑर्डर, कोई ना कोई न्यू चेंजेस, कुछ ना कुछ ड्राफ्ट जो है उसके ऊपर हमेशा डिस्प्ले होते रहते थे। ठीक है। नेक्स्ट जो है ब्लैक स्मिथ है, रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड आज टू गो स्लो। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि जो ब्लैक स्मिथ था वो क्या था, वहां पर बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था, और उसने फ्रेंच को क्या कहा कि लिटिल फ्रेंच गो स्लो, तुम धीरे चलो,
यू आर नॉट गोइंग टू लेट, आप लेट नहीं हो रहे हो, ठीक है। और उस दिन जो फ्रेंच है वो क्या नोटिस करता है, नो बसल इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट में किसी भी तरह का कोई शोर शराबा नहीं होता। क्लोजिंग द डेस्क मीन जैसे हम क्लास में बैठते तो डेस्क को हम एक बार खोलते हैं एक बार बंद करते हैं, तो उस तरह की भी कोई साउंड वहां पर नहीं आ रही थी। लेसन रिपीटेशन की, जैसे बच्चों को टीचर पढ़ाता है तो लेसन को रिपीट करते हैं, तो उस तरह की भी कोई भी साउंड वहां पर नहीं आ रही होती। रूलर रैपिंग, रूलर रैपिंग क्या होता है कि रूलर को जैसे टीचर क्या करता है, एमएमएल के हाथ में हमेशा स्केल होता था, रूलर होता था, उस रूलर को हमेशा क्या करता था, बच्चों को पनिश करता था, इसलिए बच्चे जो उसको लाइक नहीं करते थे। और जो रूलर रैपिंग की जो साउंड होती थी वो भी आज नहीं आ रही थी। एमएमएल के हाथ में रूलर था बट उसने आज उसको यूज नहीं किया था। पेरेंट्स हैड नो इंटरेस्ट इन लैंग्वेज एंड असाइन वर्क। अब यही बात मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी कहा, क्या कहा कि उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, मीन्स उन्होंने इंटरेस्ट लिया ही नहीं लैंग्वेज को सीखने में, और वो हमेशा बच्चों को असाइन करते थे हाउस होल्ड ड्यूटीज हमेशा, ठीक है। तो जैसे पेरेंट्स थे, हम क्या करते कि जैसे हमारा हिंदी सब्जेक्ट है तो हम क्या बोलते कि अरे हिंदी तो हो जाएगा कोई बात नहीं, और अदर सब्जेक्ट्स पढ़ लो, जैसे पीसीएम के बच्चे क्या करते कि पीसीएम ही पढ़ते रहते हैं और वो सोचते कि लैंग्वेज तो कोई बात नहीं हो जाएगी। तो ऐसे ही हिंदी लैंग्वेज को सोचते हैं, ऐसे ही बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज को सोचते हैं, तो क्या सोचते हैं कि लैंग्वेज तो कोई बात नहीं हो जाएगी। तो ऐसे ही सेम हैपन होता है पेरेंट्स के साथ कि पेरेंट्स भी सोचते हैं कोई बात नहीं, लैंग्वेज ही तो है, हमारी नेटिव लैंग्वेज है, कोई बात नहीं पढ़ लेंगे, आ जाएगी ये तो। बट क्या होता है कि उनको बाद में रिपेंट होना पड़ता है। विलेजर्स ऑन द बैक बेंचेस, जैसे मैंने आपको बताया ये की पॉइंट्स में कि जो विलेजर्स है, जैसे पिक्चर में भी आप देख रहे हो कि बैक बेंचेस पर कुछ पर्सन्स बैठे हैं, वो क्या है, विलेजर्स बैठे हुए थे, जो कि रेपुटेड विलेजर्स थे, वो यहाँ पर बैठे हुए थे। गैदर टू कन्वे थैंक्स एंड गिव रिस्पेक्ट टू एट हिज फेयरवेल। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में पहले भी आ चुका है कि व्हाई द विलेजर्स वर गैदर्ड और व्हाई द विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस। बैक बेंचेस पर विलेजर्स क्यों बैठे थे, वो वहां पर क्यों गैदर हुए थे, क्योंकि देखो एम हैमल ने अपने 40 इयर्स की सर्विसेज यहाँ पे दी थी, और 40 इयर्स होने के बाद अब वो जैसे कि यहाँ से रिटायर हो रहे थे, बिकॉज इट वॉज हिज लास्ट डे ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, दैट्स वाई द विलेजर्स केम देयर टू कन्वे थैंक्स एंड और टू गिव रिस्पेक्ट और रिगार्ड एट हिज फेयरवेल। और ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स में बहुत बार आ चुका है कि व्हाई द विलेजर्स वर गैदर्ड देयर, वो क्यों आते हैं यहाँ पर, उसको थैंक्स बोलने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए और उसकी फेयरवेल करने के लिए, ठीक है, उसकी विदाई करने के लिए। अब जैसे एम हेमल क्लास में पढ़ा रहा होता है तो क्या होता है कि एम हेमल पढ़ाते पढ़ाते जो है वो बड़ा इमोशनल हो रहा होता है, वो चाहता है कि वो आज ही सारी फ्रेंच लैंग्वेज बच्चों को पढ़ा दे, बहुत ही इमोशनली और बहुत मतलब कॉन्फिडेंटली वो पढ़ा रहा होता है वहां पे, और अपनी संडे ड्रेस में, ठीक है। अब जैसे ही जो चर्च क्लॉक होती है उसमें 12 क्लॉक हो जाते हैं, तो उसकी बेल बजती है चर्च क्लॉक की, और चर्च क्लॉक में 12 क्लॉक होते ही क्या होता है कि जो 12 क्लॉक होते ही जो एम हेमल वो खड़ा हो जाता है अपनी चेयर से, और उठ के वो क्या करता है, एक लंबा सा चौक उठाता है बड़ा सा और उस चौक से वो क्या करता है, बोर्ड के ऊपर लिखता है फ्रेंच लीव लॉन्ग। तो क्या करता है कि फ्रेंच लैंग्वेज, वो फ्रेंच लैंग्वेज में ही लिखता है इस वर्ड को कि जो फ्रेंच है वो लंबे टाइम तक जो है वो रहे। जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में क्या दिखाया था, जो वर्ड्स आपको बताए थे मैंने वोकैबुलरी, उन वर्ड्स में जो लास्ट वर्ड मैंने बताया था कि लॉन्ग लिव फ्रांस, और उसमें जो वीवा फ्रेंच लिखा हुआ था, मीन्स क्या होता है कि उसने फ्रेंच लैंग्वेज में वो लिखता है, और फ्रेंच लैंग्वेज में वो क्या लिखता है कि जो इनकी लैंग्वेज है वो हमेशा लंबे टाइम तक रही, ठीक है। और वहां पर जो पिजन्स थे उनकी गुटरू की साउंड भी आती है, तो फ्रेंच ये सोचता है कि क्या जो ये जर्मन लैंग्वेज है इनको भी पढ़ाई जाएगी, तो ऐसे सोचता रहता है। लेकिन अब जो फ्रेंच है, देखो फ्रेंच का जो पॉइंट ऑफ व्यू अब चेंज हो चुका होता है, और फ्रेंच अब यहाँ पर क्या सोचता है, फ्रेंच सोचता है कि अब जो एम हेमल है वो उसको पसंद आने लगता है। अब वो सोचता है कि उसने फ्रेंच लैंग्वेज क्यों नहीं सीखी, वो ये सोचते थे कि कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, आज का काम कल पे डालते रहते थे, तो उनकी जो लैंग्वेज है उनको कभी भी नहीं आई, ठीक है। और जब उनको पता चला कि ये उनका लास्ट डे है फ्रेंच लैंग्वेज का, तो उन सबको बहुत ही ग्रीफ था, बहुत दुख में थे सबके सब, और अब उनको पैट्रियटिज्म की वैल्यू पता चल रही थी, अपने देश प्रेम की वैल्यू पता चल रही थी कि उन्होंने क्यों नहीं किया। और उसके बाद जो फ्रेंच होता है, अब उसको अपनी जो हैवी बैग लगता था, जो अपने
बुक्स उसको हैवी लगती थी, जिसमें उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, और जो एम हेमल था जिसको वो हेट करता था, अब क्या हुआ कि अब उसको सबके सब बहुत अच्छे लगने लगे थे। अब उसको एम हेमल भी बड़ा अच्छा लगने लगा, अपने टीचर के लिए उसका रिस्पेक्ट जो है अब बढ़ने लगा था। क्यों? क्योंकि एक तो उसका लास्ट डे था, और सेकेंडली उसको अपनी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस पता चली थी। तो इस चैप्टर के अंदर जो एम हेमल है वो क्या कहते हैं कि आपको अपनी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। हर कंट्री की जो लैंग्वेज है वो क्या है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज होती है उसके सिटीजन्स के लिए। कि जैसे अगर हम इंडिया में रहते तो हमारी इन हिंदी जो लैंग्वेज है वो वर्ल्ड की बेस्ट लैंग्वेज हमें माननी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है कि जो फ्रांस था, उनकी जो फ्रेंच लैंग्वेज थी, उनको जो एम हेलर कहता है कि उनकी जो लैंग्वेज वो बेस्ट लैंग्वेज है, ठीक है। और उनके हाथ में प्रिजन की तब तक है जब तक कि उनकी लैंग्वेज पर उनकी कमांड है। और उनने एक बात और कही है चैप्टर में कि जब तक वो चाहें अपनी लैंग्वेज को वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट इसके लिए उनको अपनी वॉइस रेज करनी पड़ेगी। दे हैव टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द German language. They should deny in the beginning that they are not ready to learn German language. Okay, if they will deny in the beginning, then no one will be able to impose the language on them. उन पर कोई उनकी लैंग्वेज अदर लैंग्वेज को इम्पोज नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने यही इशारा इसमें किया है कि अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दो, और अगर आप चाहते हो कि आपकी लैंग्वेज जो है वो आप पढ़ते रहो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देनी होगी, और स्टार्टिंग में ही अपनी वॉइस को रेज करना है, अपनी आवाज उठानी है इसके अगेंस्ट कि हम कोई और लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर। और लास्ट जो चैप्टर की एंडिंग होती है वो किससे होती है? एंडिंग होती है आपकी कि जब लास्ट में जो एमएमएल है वो चौक उठाते हैं और उस पे बोर्ड पे जो है वो लॉन्ग लिव फ्रांस को लिखते हैं। अब बोर्ड में ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बोर्ड में ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। एक ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ चुके हैं, और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको शो करूंगी मैं अभी, वो 6 मार्क में आ चुके हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस ऑन द वे ऑफ द टाउन हॉल? टाउन हॉल की तरफ जाते हुए फ्रेंच ने क्या नोटिस किया? देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो था व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस ऑन द वे। अगर खाली ऑन द वे आता है तो आपको बर्ड्स की चिरपिंग और जो सॉ मिल वाला जो पोल्यूशन परेड कर रहे होते हैं वो पॉइंट लिखना है, ठीक है। अगर आता है कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस ऑन द वे ऑफ द टाउन हॉल, टाउन हॉल के रास्ते में क्या देखा? तो उसने क्या देखी थी? ही सा द गैदरिंग अराउंड द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के अराउंड में उसने गैदरिंग को देखा था, एंड ही वाज अननोन दैट व्हाट वाज पेस्टेड ऑन द bulletin board that day. And how did he come to know? He come to know about the news when he entered in the classroom, and M. Hamel declared that it was his last lesson. Then he understood that, oh, it was the notice on the bulletin board, and that's why there was gathering. Okay. Second is there, why was French worried? फ्रेंच जो है वो वरिड क्यों था? किस बात की उसको चिंता थी यहाँ पर? फ्रेंच किस लिए वरिड था? फ्रेंच वॉज वरिड बिकॉज हिज topic participle was not prepared with him, and even he was unknown with the first alphabet of participle. Okay. And the third question, what was written on the bulletin board? bulletin board पे क्या लिखा था? Okay, there was one order which came from Berlin, and what was written on that? There was written that their French language would ban, okay, and German language would be taught to them from tomorrow. नेक्स्ट इज हाउ वॉज एमएमएल ड्रेस्ड अप? की पॉइंट्स में आपको एज इट इज आंसर मिल जाएगा, और की पॉइंट्स आप इसका आंसर एज इट इज लिख भी सकते हो, हाउ ही वॉज ड्रेस्ड अप। ओके, नेक्स्ट इज देयर, व्हाई वर विलेजर्स सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस? नो, again the question is repeated there, as I told earlier that what is the answer of this chapter. The villagers were sitting on the back benches because they wanted to give regard, to say thanks for the faithful 40 years services of M. Hamel. And now this is the turn for long question. As you have seen the first question, write the character sketch of M. Hamel. करेक्टर स्केच में वो दोनों को क्या है अलग अलग से पूछेगा 6 मार्क्स में कि एमएमएल का करेक्टर स्केच और फ्रेंच का, एंड दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू की पॉइंट्स ऑफ करेक्टर वाइज। इसलिए मैंने आपको करेक्टर वाइज जो की पॉइंट्स है वो आपको स्टार्टिंग में देखिए। अगर फ्रेंच का करेक्टर स्केच आता है तो फ्रेंच के पॉइंट्स ऐसे आपको उनको एक्सप्लेन करना है, और अगर एमएमएल का पूछते तो एमएमएल का आपने क्या करना है, उसके
पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है. ओके, दे कैन आस्क यू कैरेक्टर स्केच और पेन पोर्ट्रेट ऑफ एम हेमल and French separately also. And the next question is that how did they realize the importance of their own language? अपनी language की importance उनको कैसे realize होती है? What did M. Hamel suggest them? और M. Hamel ने उनको क्या suggest किया था कि how did they realize the importance? उनको कैसे realize होती है? When the order came from Berlin, and in the order what was declared that there would ban on teaching which language? French language. Okay, then they realized that, oh, this is the last lesson, this is the last day of their French language. Then they realized the importance of their language. And what did M. Hamel suggested them? M. Hamel suggested that first of all they should raise their voice against this language. They should not be agreed on this language in the beginning. Okay, and if they will deny in the beginning, means to say that no one will impose the language on them. Okay, so for the rights, everybody should be ready for that, and we should always raise our voice against any kind of crime. So this was your first chapter of Flamingo, the last lesson. I hope everybody understood this chapter. Okay, thank you so